The small pigment known as luciferin. Luciferin, when it interacts with oxygen, it produces light. So उसकी वजह से, so जिसके बॉडी में भी लूसिफरिन मिलेगा वहां पर वो बायोल्यूमिनेसेंस आएगा. It is just for your information, nothing required for the exam. Okay, please. Particular sense of sense organ of ctenophores is statocyst. ये देखो यहाँ पर, if you can see in the diagram here, presence of a statocyst. And यहाँ पर helps in equilibrium. The word stato itself is indicative for that. Sexes are not separate, they are hermaphrodites. Please, all those phyla which are showing this feature of hermaphrodism right now, usko ek alag column banao, please. So sexes में monoecious, dioecious वाला column अलग बना. So you should have phyla which are monoecious, phyla which are dioecious. You can have certain phyla जिसमें certain examples can be in both of them. Like annelids के अंदर या उसमें आएगा examples. Some of them are monoecious, some of them are dioecious. So this again can be a very good question. Reproduction takes place only by sexual means. देखो फिर exclusive आ गया. No asexual reproduction. Fertilization is external with indirect development. Yes, Mr. Narayan, what is indirect development? So formation, development without like through a stage which does not resemble the adult. So you'll have a larval stage. You'll have a larval stage which is not resembling the adult, and that is called as the indirect development. The examples are Pleurobrachia, which is sea gooseberry, Hormifora, which is sea walnut, and Tinoplana. I think उसमें से Hormifora is not in there. हाँ, वो extra example है. ठीक है? Okay. Now the next are two worms. Platyhelminth, right? Last time I बताया helminth का मतलब worm होता है. Platy is flat and ask means round. So we have flatworms. Flatworms because they have a dorso-ventrally flattened body. Chapta, right? Ribbon-like. So dorsally be flat, ventrally be flat. आगे पीछे दोनों तरह से flat है. The body is leaf-like or ribbon-like, right? You have studied structure of leaf. वहां पर भी आया था. It is dorso-ventrally flattened structure. Unsegmented and covered by a cuticle. Now, cuticle is a very typical feature of worms. Now, majority of these helminths, they are endoparasites. They are found as parasites within the body of an organism. So obviously वो organism क्या हो जाएगा? Host हो जाएगा ना उसका. वो उसका host हो जाएगा. तो अपने आप को host के enzyme से बचाने के लिए, to save itself from the enzyme action of the host, parasite ka body is covered by a tough cuticle. So the cuticle is to protect itself from the enzyme action of the host. Flatworms are bilaterally symmetrical, triploblastic, acoelomate animals with organ level of organization. Vimisha? Yes, sir. What is acoelomate, beta? The body cavity is like it's not What is acoelomate? it does not have a body cavity. So what remains undivided so that body cavity is not formed? The ectoderm, endoderm, mesoderm. Sorry, I forgot. You're not prepared in come. It was mesoderm, beta. Okay, mesoderm. It's a division of mesoderm which causes formation of body cavity, beta. Okay. They're mostly endoparasites found in animals, including human beings. Hooks and suckers are present in the parasitic forms for attachment. Have a look at this. Can you see hook here? Hook up, right now. So hooks are there for attachment to the host. Some of them absorb nutrients from the host directly to the body surface.
Flatworms, they show blind sac body plan. We've learned 3 types of body plans. We know what is a cell aggregate plan, a blind sac, and a tube within tube body plan. Digestive system is absent generally. ये भी एक parasitic feature है. जैसे क्यूटिकल कैसा पैरासाइट का फीचर होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का एब्सेंट होना. ऑब्वियसली उसको होस्ट से डायरेक्टली डाइजेस्टेड फूड मिल रहा है, तो खुद को डाइजेस्ट करने का जरूरत नहीं, राइट? इसलिए उसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट. और अगर प्रेजेंट होगा तो इट इज इनकम्प्लीट विद ओनली वन ओपनिंग कॉल्ड माउथ, क्योंकि इनकम्प्लीट है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है. Specialized cells called flame cells or protonephridia or solenocytes help in osmoregulation excretion. ये already excretion chapter में आ चुका है अपने को. Flame cells are called as protonephridia. यानी now here you have a specialized organ for removal of waste, and that is, देखो organ level आ गया ना organization का. So you are having a specialized organ which is called as protonephridia. Locomotory structures and sense organs are absent. Again, a feature of parasitic form. Right? अब वो अटैच हो जाएगा होस्ट को, अब उसको हिलने डुलने का जरूरत क्या? इट डज नॉट नीड टू गो एनीवेयर, अटैच हो गया वो तो होस्ट को. सो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट फॉर दैट. नर्वस सिस्टम इज इन द फॉर्म ऑफ नर्व रिंग एंड नर्व कॉर्ड. ये देखो, डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम स्टार्टेड नाउ. कहां से स्टार्ट हुआ था? हाइड्रा से स्टार्ट हुआ था, इन द स्मॉल फॉर्म ऑफ फ्यू स्कैटर्ड सेल्स. क्या बोलते थे उसको? नर्व नेट. नर्व नेट बोला था. तो यहां पर यू हैव अ नर्व रिंग एंड अ नर्व कॉर्ड. नाउ आगे जाके ये डेवलप होगा. हमने ऑलरेडी कॉकरोच में देखा है कि नर्व रिंग डेवलप होगा. वन पार्ट ऑफ द नर्व रिंग, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, विल कॉल्ड एज ब्रेन एंड ऑल दैट. सेक्स इज नॉट सेपरेट. अगेन हर्माफ्रोडाइट वाला है पार्ट. देखो, fertilization internal, development is through many larval stages. What is larval stages? Direct or indirect development? Indirect development. Indirect. Some members like planaria possess high regeneration capacity, right? And they regenerate very fast. Even if you divide a planaria into two, each of the cut parts will develop as a separate planaria. So regeneration capacity बहुत ज्यादा रहता है इन लोग का, right? जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म हाई होता जाएगा तो कुछ ऑर्गेनिज्म रीजनरेशन कैपेसिटी दिखाते हैं, लेकिन बहुत छोटे लेवल पे, माइन्यूट लेवल पे. क्या, लाइक फॉर एग्जांपल, डू यू सी अ टेल बीइंग रीजनरेटेड फॉर अ लिजर्ड, राइट? सो मे बी थोड़ा सा लेवल पे आएगा, राइट ना. डू वी शो रीजनरेटिव कैपेसिटी? यस वी शो, राइट. नेल्स बढ़ते, अपने हेयर बढ़ता है, राइट? तो थोड़ा बहुत रीजनरेट हो जाता है, राइट. नॉट ऐसा उंगली कट गई तो उंगली वापस आ जाएगा, अपने में ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है ऐसा, प्लीज तो ट्राई भी मत करना. ओके, वी हैव एग्जांपल्स ऑफ टीनिया व्हिच इज टेपवर्म, फेसियोला व्हिच इज लिवर फ्लूक. यहां पर इंपॉर्टेंट, प्लीज, ये ऑल्टरनेटिव नाम जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? यहां पर काफी स्टूडेंट्स गलती करते हैं, सो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट द नेम्स. ये देखो, टीनिया टेपवर्म, फेसियोला, लिवर फ्लूक यहाँ पे दिया हुआ है इन एनसीईआरटी ऑल्सो. अपार्ट फ्रॉम दैट, प्लेनेरिया एंड ड्यूजेसिया, ये एक्स्ट्रा एग्जांपल्स है. यू कैन प्लीज read it or ignore it as you feel better, right? Yes, Narayan, you have a question, beta. So what's the use of the nervous system here? There's no digestion, there's no locomotion, there's no sense organ. Yeah, it is sense organs are, I beg your pardon? So what's the use of nervous system in this phyla? Because there's no digestion, there's no locomotion, there's No, not when even... you have when you have separate organ systems need to be coordinated ना. Organ Yeah. अलग है ना उसके पास. हाँ. हाँ, तो उसको कोऑर्डिनेट करना चाहिए ना उसको. फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप्ड है इसमें पूरा, हाईली Okay. डेवलप्ड है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट ना. Okay. तो पैरासिटिक फीचर है वो. अगेन ये देखो, यहां पर आई हैव गिवन ऑल पैरासिटिक फीचर्स अलग से दिया है, देखो मैंने. दिस इज अगेन जस्ट फॉर प्योरली फॉर योर इंफॉर्मेशन, प्लीज. एंड एज आई सेड, वी आर नॉट डूइंग क्लास नाउ. ऑल्दो वी आर नॉट डूइंग क्लास, जिल एक मिनट बेटा, हाँ. ऑल्दो वी आर नॉट डूइंग क्लास, but please keep your eye open for these examples. You might find them useful when you are solving MCQs from MTG area, please. Right? अगर अटक गए तो you can come back here again, please. Yes, Jill, बोल.
Yeah, sir, I didn't understand the statement says that locomotory structures and sense organs are absent. So locomotoric structures are absent. So how do they attach to the host? Like पहले तो चाहिए ना to attach, then भले ना हो. नहीं नहीं नहीं, उनका जो ये है ना सब, उनका फीको ओरल रूट से ये होता है बेटा. दे हैव प्रोपगेशन थ्रू फीको ओरल रूट, एंड व्हेन थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम दे कम इनसाइड. तो वो खाने के साथ ही अंदर आते हैं, एंड व्हेन दे गो इनसाइड द सिस्टम द एग्स आर हैचिंग एंड दे आर अटैचिंग इटसेल्फ. और क्या मतलब, जैसे पैदा होता है वैसे ही अटैच हो जाते हैं वो लोग. अच्छा, and can you please explain fertilization is internal? मतलब larval stages भी हो रहा है, but internal कैसे हो रहा है मेरे को नहीं समझ. इंटरनल, सो ये सेक्सेस सेम है ना, हर्माफ्रोडाइट है ना बेटा. तो ऐसे तो टेर्नोफोरा में भी it is mostly like no they're hermaphrodites, but over there it हर्माफ्रोडाइट. is sorry हाँ. hermaphrodite, but उधर external है इधर internal है, वो कैसे. नहीं, जो इस पे डिपेंड नहीं करेगा, राइट ना. यू कैन हैव गैमेट्स का डिस्चार्ज. फ्रॉग, फ्रॉग कितना हायर एनिमल है, हाँ. तो फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, यानी कि मेल गैमेट विल बी डिस्चार्ज इन वाटर, फीमेल गैमेट विल बी डिस्चार्ज इन वाटर, सिंक्रोनाइज एक ही टाइम पे, राइट ना. द मेल विल copulate with the female, but the discharge of gamete is in the environment, and the fusion of the gamete is outside the body. So fertilization is outside the body, so it is external. ठीक है. Okay, yeah, understood. Ask Helminthis. Yes, Mahi beta. So if the fertilization is outside the body, then the chances will be very low. Chances of fertilization. Yeah, fertilization. Yeah, ठीक है, it's okay. That's why the number of gametes are going to be high, na? Okay. See, in lower organisms, Mahi. Yes. In lower organism, beta, na, the number of this formed, the progeny formed is very high, but then they get eliminated by the predators. They get eaten up. So ultimately, the number remains very small to develop. So उसको compensate करने के लिए the amount of gametes are very high. ठीक है. Now, Aschelminthis roundworms. The body of Aschelminthis is circular in cross section, hence roundworms. So यहाँ पर it can be aquatic or terrestrial, free living or parasitic, parasitic in plants or animals. Organ system level of organization, bilaterally symmetrical triploblastic pseudocoelomate. We just answered a question in the DCT today that the only pseudocoelomate of the animal kingdom is Aschelminthis. Tough resistant cuticle. देखो cuticle आ गया यहाँ पे. The body wall has longitudinal muscles but no circular muscles. The body plan is tube type. Tube type मतलब tube within tube. मतलब ये बढ़ गया आगे अभी. यहाँ पर क्या था? The body was having blind sac body plan. यहाँ पर tube within tube आ गया. Alimentary canal is complete, right? Now mouth and anus at opposite ends. Even the pharynx is properly muscular pharynx आ गया अभी यहाँ पर. Protonephridia है अभी भी यहाँ पर. The protonephridia का बड़ा नहीं है. It still has a protonephridia only. Sexes are separate now, finally. Right? Sexes have become separate. Dioecious. This diagram is there in the NCERT. The male and female ascaris. The male ascaris is shorter and narrower than the female. Look at the male ascaris. Can you see the male ascaris ending up here? लेकिन female ascaris थोड़ा सा लंबा है. Okay. The male has a curved posterior end. Please, थोड़ा हाथ जोड़ के, थोड़ा ध्यान से. बहुत गंदा मिस्टेक करते हैं. Right? मुझे अभी भी डाउट्स आते हैं 12th स्टैंडर्ड वालों के. सर ये कर्व्ड पोस्टीरियर है सर, देखो है ना. तो फीमेल का कर्व्ड पोस्टीरियर आना चाहिए. नहीं, ये कर्व्ड पोस्टीरियर है. Can you see? यहाँ posterior end is not curved. यहाँ straight है posterior end. This is the posterior end. Right ना? ये curvature नहीं है. Please. Lot of students make mistakes at this point. Please.
and also male में you can see a small spiny part at the end, काला कलर का दिख रहा है आपको, that is pineal setae for copulation, which is distinctly absent in case of females. Right? For your benefit, I have given the difference between male and female ascaris also at the end of the discussion. Fertilization is internal and development may be direct or indirect. Again, species to species depend करेगा, because बहुत सारे species इस phylum में आ जाएंगे. राउंडवर्म में सिर्फ एस्करिस लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, मैंने आपको पूरा नाम दिया यहाँ पे, एस्करिस लम्ब्रिकॉइड्स. वूशेरिया बैंक्रॉफ्टी फाइलेरिया वर्म, जिससे फाइलेरियासिस होता है, एलिफेंट फुट, ओके, वो है ये. हुकवर्म एंड काइलोस्टोमा डिओडोनिल. कभी कभी क्या करते हैं ये लोग है ना, एस्करिस नहीं देंगे, ए डॉट लम्ब्रिकॉइड्स देंगे ये लोग, चालाक होते जरा. फिर डब्ल्यू डॉट बैंक्रॉफ्टी देंगे, क्योंकि हेल्थ और डिजीज में जो है ना, हेल्थ और डिजीज चैप्टर में जो 8 चैप्टर है 12th एनसीईआरटी का, वहां पे वूशेरिया के 2 ऑर्गेनिजम्स मेंशन्ड है, बैंक्रॉफ्टी और मलाई, MALAYI, राइट ना. तो अगेन, सो यू हैव टू नो दैट फाइलेरिया वाला बैंक्रॉफ्टी है, मलाई नहीं है, ठीक है. एनकाइलोस्टोमा डिओडोनल, सो ए डॉट डिओडोनल देंगे. दैट्स व्हाई यू नो आई हैव सीन अ मेंशन ऑफ देम इन द some of the question papers. So better that we know the full names. ये वाला एक्स्ट्रा है मेरे तरफ से, छोटा सा गिफ्ट, ड्रैकेंकुलस मेडिनेंसिस, which is called as guinea worm, राइट ना. मतलब कोशिश करो फिर भी थोड़ा सा, क्या सर एक्स्ट्रा दे ही देते कुछ भी, क्या, चलो जाने दो. राइट, सो 3 फाइला we've done. टीनोफोरा बहुत छोटा था, and we've done the 2 worms, platyhelminthes and aschhelminthes. Yes, please, you have a couple of minutes for yourself. Just go through the NCERT and see if there are any points which you require explanation again. आर्यन बोल बेटा. सर डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब क्या? Outside the, हाँ, outside the cell बेटा, outside the cell. Sometimes it is कैसे? inside cell, हाँ वैसा ही, और कुछ नहीं. मतलब सिस्टम डिफाइंड नहीं है वहां पर, या तो सेल के अंदर होगा या सेल के बाहर होगा, एंजाइम अंदर सिक्रीट होगा या सेल के बाहर सिक्रीट होगा, ओके. और कुछ नहीं. आर्यन स्कोर 16 चैप्टर टेस्ट. 340. रोता 350. 350. पटेल 340. 340. नारायण 340. 340. हाईएस्ट 360 है ना? नहीं ऐसे ही बता रहा हूँ खाली, हाईएस्ट 360. हाँ सर, कोई बात नहीं, ऐसा मत कोई किया बात- करो सर. अरे मैं खाली, नहीं सर, कल एक डोज हो गया मेरा, छोड़ दो ना. दर्द अच्छा होता है सर, ऐसा मत करो. अच्छा, हाँ तो दर्द सर, होना कल चाहिए, हो गया ऑलरेडी. दर्द होना चाहिए भाई, राइट कल ना. बहुत दर्द हो गया सर, कल किस- कल क्या बहुत उस- हो सर, क्या ही बोल. हाँ, अच्छा अच्छा, ऑफलाइन में लिया सर ने, एकदम ऑफलाइन में. दोनों दोनों, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सर, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों. अच्छा अच्छा, मतलब मिस्टेक्स मतलब अवॉइडेबल था पटेल. एक वो रेनिन वाले में गया, स्टेटमेंट बेस्ड थे ना 4 क्वेश्चन, वो एक ओके. अवॉइडेबल था, बट वो मार्क करके फिर रियलाइज. हाँ नारायण, 3 अवॉइडेबल थे, और ऊपर से वो आपने वो स्पेशली मेरे लिए क्वेश्चन डाले थे ना,
क्या? माल्पिक इंटीरियर और माल्पिक इन कॉर्पसल वो उसमें हक दिया। अच्छा, अरे मैं अच्छा उस पे लिखा था दिस स्पेशली फॉर नारायण, ऐसा लिखा था क्या वहाँ पे? हाँ Yes, हाँ, राइट ना। और बंदा मेरे को डालता भी है क्वेश्चन कि सर ये क्या है, इसका आंसर क्या है सर? राइट ना, ट्राई मारता है, चलो मिल जाएगा शायद ऐसा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ट्राई करने में क्या जाता है। ट्राई करने में क्या आता है, सही है। हिताक्ष, स्कोर? हाँ, 250। डिड आई हियर राइट हिताक्ष? अरे बाप रे बाप। पिलंकर? 350. 350। ओके। तारिणी पाडिया, पहले स्कोर बताओ फिर क्वेश्चन। Sir, 350. 350, 2 mistakes. Okay, पूछ, tell me what happened. Sir, can you go to that diagram you showed for the male and female now? Male and female ascaris बेटा, For the other black and white one. ये वाला। Yeah. Asking cloaca, Sorry. what do you want to ask भैया बेटा? So what is that? What have you written? What's about the A diagram, CO, atrial approach? What is that? Is that something? ये वाला? No, in the first diagram, the male diagram. No, sir. In that diagram only, above the word A, there's something written over there. What is that? Above the word anus, ये वाला? Some male diagram. Male diagram, okay, A is male, okay. So that, what is that? CO, atrial approach. Cloacal aperture, ये वाला? आ रहा, ये रहा क्लोएका, वही तो पूछा था मैं। हाँ, सी व्हेन, ये देखो यहाँ पर एनस should have a separate opening बेटा, Yeah. and a genital opening, any reproductive opening should be separate. So when multiple systems have common opening to the exterior, it is called cloaca beta. Right now, so I think two systems having same opening, ठीक है, उसको cloaca बोलते हैं. But in female there are separate anus and separate genital apertures, no cloaca. Okay, ठीक है, चलो. We go to Annalita, please, everybody. Right? Okay. Yes, Ruta, बोल बेटा. Tinophora, what are the, I did not understand the 8 external rows. They have only ciliated those comb plates which are for locomotion. Nothing else. Don't worry about it. Please. Okay. And now the next two phyla are annelids and arthropods. Right? I assume that we are under the impression that जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे थोड़ा सा complexity creature का बढ़ता जाएगा. Okay. They may be aquatic or terrestrial. Right? अभी देखो habitat का ज्योग्राफी बढ़ रहा है. एक्वेटिक मरीन वाटर भी हो सकता है, फ्रेश वाटर भी है, टेरेस्ट्रियल भी है, फ्री लिविंग हो सकता है, समटाइम्स पैरासिटिक, सम आर बरोइंग. राइट, बरोइंग में तो अपने मालूम है ना, बेचारा छोटा सा अर्थवर्म अपना फ्रेंड ऑफ फार्मर वाला. ओके, बचपन से आंसर कर रहे क्वेश्चन, व्हाई इज अर्थवर्म कॉल्ड फ्रेंड ऑफ फार्मर? ओके, and occurring in moist soil. They exhibit organ system level of body organization, bilateral symmetry, triploblastic, metamerically segmented coelomate animals. Right ना, एक भी चीज एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं, सब आता है आप लोगों को उसमें से. ठीक है. Their body surface is distinctly marked out into segments or metamers. You can see तीन examples सामने हैं. We have a nereus, we have a leech, and we have a earthworm. All three can see distinct segmentation. सब में दिख के आ रहा है अपने को segmentation. Okay, distinct segmentation. Hence the phylum का name is annelids. Latin में annulus का मतलब होता है little ring. Okay. Okay. They possess longitudinal and circular muscles which help in locomotion. पहले आया था ये, remember, only longitudinal not circular muscle absent है. Right? अब यहाँ पर both are present and they help in locomotion. Now locomotion के लिए you have a separate organ here. In case of earthworm, the organ of locomotion is called setae. Setae, S-E-T-A. It's a S-shaped structure present in almost all the segments of the cockroach.
There are a few exceptions, but not worth mentioning here. In case of leech, the organ of locomotion is called sucker. लेकिन जो नीरस है ना, ये वाला नीरस, ये aquatic है. तो उसके अंदर the organ of locomotion is parapodia, which is exactly used for swimming ना, क्योंकि aquatic है वो. So नीरस, which is sandworm, the organ of locomotion is parapodia. So setae for earthworm, sucker for a leech, and parapodia for nereis. So you can have those match the column types, match column A, match column B types. Okay. Body plan is tube type, right? So we have a tube within tube. That means digestive system is complete, mouth and anus at opposite ends. Closed circulatory system is present. Hemoglobin is there in the plasma. Respiration is through the body surface. So you don't have a specific respiratory system here, right? इसके आगे क्या है? आर्थ्रोपोडा. क्या आर्थ्रोपोडा में कोई स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी सिस्टम है? स्पिरैकल्स है, ट्रकियल ट्यूब सिस्टम है. हाँ, ऐसे इग्नोर मत करो भैया प्लीज. नेफ्रीडिया हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. देखो, नाउ फ्रॉम प्रोटोनेफ्रीडिया वी आर नाउ प्रोग्रेसिंग टू नेफ्रीडिया. ये नेफ्रीडिया आर्थ्रोपोड्स में जाएगा तो क्या हो जाएगा? मैल्फिजियन ट्यूब्यूल हो जाएगा. यस मैल्फिजियन ट्यूब्यूल. हाँ, देखो मैंने क्या बताया, हम लोग उसको ट्रेस करेंगे, राइट? तो हमने स्टार्ट किया प्रोटो से एस्केलमेंथिस में, उसके बाद फिर से प्रोटो ही था, राइट ना? वी हैड प्रोटो इन प्लैटिहेलमिंथिस, प्रोटो इन एस्केलमेंथिस, नाउ वी हैविंग नेफ्रीडिया. इसके आगे जाएगा तुम्हारा मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स जाएगा. ठीक है, ओके. नाउ नेफ्रीडिया को कंसिडर करते हैं ना, तो वो लोग कभी कभी ना अर्थवर्म में एक गूगली क्वेश्चन डालते अर्थवर्म के हिसाब से. और अर्थवर्म एक्चुअली अपने को सिलेबस में है नहीं, बट ये एक दो बार मैंने अलग एम्स का सीईटी में, एक बार एम्स का एग्जाम में शायद देखा है मैंने ये. अगर देखो एक मिनट just give me a minute. When you look at the earthworm वाला पार्ट ना, तो देखो यहाँ पे कहा कि नेफ्रीडिया इज ऑफ 3 टाइप्स. दिख रहा है नेफ्रीडिया 3 टाइप्स यहाँ पर. अर्थवर्म का डिस्क्रिप्शन है ये. और उसमें सेप्टल नेफ्रीडिया, इंटेग्यूमेंटरी नेफ्रीडिया एंड फेरेंजियल नेफ्रीडिया, राइट? So when you are talking about nephridia of earthworm, Animalia kingdom, Animalia chapter में you talk about nephridia in Annelida, earthworm के अंदर. So they link it here and ask you 3 types of nephridia are there in the earthworm. Okay, तो कभी कभी ये छोटा सा गूगली छोड़ देते हैं वो लोग यहाँ पर. ओके, सो वहां पर नेफ्रीडिया जब पढ़ेंगे ना, तो खाली एक छोटा सा क्रॉस रेफरेंस 7.12 का डाल देना, नेफ्रीडियल सिस्टम इन अर्थवर्म का, राइट? मे बी जस्ट रेफर डायग्राम 7.12. सो जस्ट दैट रिमेन्स एट द बैक ऑफ योर माइंड दैट ये नेफ्रीडिया 3 टाइप से अर्थवर्म के अंदर, प्लीज. ओके, ठीक है, ओके. नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व रिंग एंड पेयर्ड गैंग्लिया. ओ, नाउ थोड़ा सा और एलिवेशन आ गया. सिर्फ नर्व कॉर्ड नहीं, नाउ यू हैविंग गैंग्लियोनेटेड सिस्टम. गैंग्लिया हैज कम, कनेक्टेड बाय लैटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड. पहले क्या था? सिर्फ नर्व कॉर्ड डिस्क्रिप्शन था. अब बहुत स्पेसिफिक आ गया, डबल, राइट ना? मतलब नर्व कॉर्ड 2 है. वेंट्रल मतलब पोजिशन आ गया. ओके, कॉकरोच में भी सेम था ना, डबल वेंट्रल सॉलिड गैंग्लियोनेटेड. ये चारों कैरेक्टर मैंने एक्सप्लेन किया था. हाँ, डबल वेंट्रल सॉलिड गैंग्लियोनेटेड. एकदम अपने से एकदम ऑपोजिट है. अपना डबल नहीं है, अपना सिंगल है. अपना वेंट्रल नहीं है, अपना डॉर्सल है. अपना नॉन गैंग्लियोनेटेड, अपना हॉलो है. ठीक है ना? अपने को कनाल है बीच के अंदर. ओके, सो एकदम ऑपोजिट है अपने जैसे. नीरस an aquatic form is dioecious, but earthworm and leech are monoecious. देखो ना, एक ही फाइलम के अंदर 2 अलग टाइप के एग्जाम्पल है. ओके, नीरस इज dioecious, right? यानी सेपरेट सेक्सेस आर देयर. earthworm and leech are monoecious.
reproduction is sexual. Earthworm, right? Because earthworm का description हम लोग कर रहे हैं. Earthworm, see, when you say earthworm is monoecious, आप लोग क्या बोल रहे हो? मोनोइशियस मतलब, मोनोइशियस मतलब बोल रहे हो कि सर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर है. Both the testis and the ovary has to be on the same structure itself. That is when you say it's monoecious. Now, when you talk of sexual reproduction, so sexual reproduction will involve only one organism or two organisms. In earthworm, जब मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही स्ट्रक्चर के ऊपर है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा या दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा? One, no? Because it's on the same organ. But twist होगा इसमें. सर पूछे तो ट्विस्ट होना चाहिए. Exactly. राइट ना, ये देखो, राइट ना, अर्थवर्म में two earthworms lie in opposite directions to each other. उसको juxtaposition बोलते हैं. यानी एक का मेल ऑर्गन towards the female of the other and vice versa. ये दिख रहा है यहाँ पे two organisms against each other. ये दिख रहा है against. So एक का मेल ऑर्गन will discharge the gametes into the system of the other and vice versa. मतलब है ये monoecious. ये स्ट्रक्चर मोनोइशियस है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरी आउट करने के लिए अभी भी दो ऑर्गेनिज्म की जरूरत है. यहां पर समझ में आया ये प्लीज एवरीबॉडी? हाँ नारायण, तेरे चेहरे पे एकदम बड़ा क्वेश्चन मार्क दिख रहा है मेरे को बेटा. But so why is two required? हाँ, क्योंकि देयर इज नो सिस्टम फॉर द मेल टू पास टू द फीमेल गैमेट, इसलिए सामने वाला सिस्टम चाहिए. दूर है ना बहुत. ओके, ठीक है. राइट, तो ये छोटे थोड़े बहुत ये थे ना, थोड़े एनोमलीज, वो याद रखना प्लीज. ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग. एक्टोपैरासाइट लाइक लीच इज सकिंग वर्टिब्रेट ब्लड, राइट? सैंग्विवोरस, राइट ना? like students, they suck teachers blood, right? No? Students are also sanguivorous, right? आज बहुत खून पिया तुम लोगों ने मेरा, बहुत जला है एकदम, माफ नहीं करूंगा तुम लोग को मैं. ओके, ठीक है. सैंग्विवोरस, राइट? जैसे कार्निवोरस होता है, हर्बीवोरस होता है, वैसे द वंस हु taken blood as nutrition, they are called as sanguivorous, right? So the Dracula, the vampires are sanguivorous. Okay. Right. The saliva of the leech, it has a powerful anticoagulant hirudin. नोट्स के अंदर बाय मिस्टेक हेपेरिन आ गया है शायद, मेरे ख्याल से, राइट ना? हाँ, तो उसको हिरुडिन कर देना प्लीज. ओके, पावरफुल एंटीकोएगुलेंट कॉल्ड एज हिरुडिन. See, when blood comes outside the body, what is the property of blood? Immediate clotting होता है उसका, immediate clotting. हाँ, clotting mechanism activate हो जाता है. तो अगर वो ब्लड सक कर रहा है तो वो क्लॉटिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा, तो वो वापस ब्लड सक नहीं कर पाएगा. तो उसके सलाइवा में जो हेरुडिन होता है वो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है, एंटीकोएगुलेंट, एंड इट कैन कीप ऑन सकिंग ब्लड, राइट, मोर देन इट्स बॉडी कैपेसिटी. लीच कैन सक ब्लड मोर देन इट्स बॉडी कैपेसिटी. ओके, सो ये जो एंटीकोएगुलेंट है हेरुडिन, उसको हम लोग सेपरेट करते हैं जेनेटिकली, और उसको हम लोग मेडिसिनली यूज करते हैं टू प्रिवेंट हार्ट अटैक्स, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन प्रिवेंट करने के लिए, बिकॉज वो क्लॉट्स होते हैं तुम्हारे आर्टरीज के अंदर, उसको ब्रेकअप करने के लिए. सो एग्जाम्पल में वी हैव अर्थवर्म, फेरिथिमा. फेरिथिमा का पूरा नाम है फेरिथिमा पोस्थ्यूमा. फेरिथिमा पोस्थ्यूमा. नीरस हिरुडिन है, इसलिए लीच का नाम है हिरुडिनेरिया. ओके, Sir, यस बेटा. sir, can you please repeat the name? ये रहा बेटा यहाँ पर, No, the full name. फेरिथिमा पोस्थ्यूमा, POSTHUMA. जैसे अपना कॉकरोच था ना, पेरीप्लानेटा अमेरिकाना, जीनस स्पीशीज, वैसा. ठीक है, ओके. सर, रिपेयरिंग द एंटीकोएगुलेंट है ना,
कम अगेन क्या बोल रहे हैं? पिपेरिन भी एंटीकोएगुलेंट ही है ना? हाँ, लेकिन वो अपने में है. ओके, नाउ कमिंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा. राइट, अब आज का डिस्कशन का लास्ट पार्ट. राइट, सी ब्यूटिफुल इंसेक्ट, क्या क्या मस्त एकदम यार. जस्ट कीप ऑन लुकिंग एट इट. ओके, in fact it is looking at you also. See, इसका eyes इस तरफ ही है. It is looking at you only. Okay. Arthropods are solitary or colonial. आपके एनसीईआरटी में देखो, वहां पे लिखा हुआ एक स्टेटमेंट है, 2/3 ऑफ द नेम्ड ऑर्गेनिजम्स आर कमिंग अंडर आर्थ्रोपोडा. तो जहां 2/3 लिखा है वहां प्लीज आप 66% डाल दो. राइट, ये उन लोगों के लिए है जो क्वेश्चन में 66% को पहचान नहीं सकते कि 2/3 उतना हो जाएगा. ठीक है ना? राइट, और जो 1.5 आने वो बोलेंगे नहीं सर 66.66 आना चाहिए. ओके ओके. आर्थ्रोपोड्स कैन बी फ्री लिविंग. राइट, उसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन दिया है, बार्नाकल्स आर सेडेंटरी. राइट, बार्नाकल्स आर सेडेंटरी. Barnacles are usually found associated on the back of the whales. राइट, वेल का कोई भी इमेज गूगल करेंगे ना, तो वेल के बैक पे तुमको व्हाइट कलर के छोटे डॉटेड स्ट्रक्चर्स दिखेंगे. दोज आर बार्नाकल्स. राइट, सो दे रिमेन, बार्नाकल्स रिमेन एसोसिएटेड विद दोज वेल्स ओनली. उससे बार्नाकल का फायदा होता है क्योंकि उनको मोबिलिटी मिलती है, तो खाने के ऑप्शंस बढ़ जाते हैं उन लोग के. लेकिन वेल के लिए न्यूट्रल है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो रहे तो भी ठीक है, नहीं रहे तो भी ठीक है. तो ऐसा जो एसोसिएशन रहता है ना, कि एक का फायदा होता है और दूसरा न्यूट्रल रहता है, उसको कमेंसालिज्म बोलते हैं. राइट, जैसे सिम्बायोसिस पढ़ा था हम लोग ने. व्हाट वाज सिम्बायोसिस? दोनों का फायदा होता है. राइट, लाइकन में पढ़ा था ना मैंने, एल्गे और फंगस दोनों का फायदा होता है. सो इफ यू आर बेनिफिटिंग बोथ ऑफ देम देन इट इज सिम्बायोसिस, या म्यूचुअलिज्म बोलते हैं. राइट, सो बार्नाकल और वेल का एसोसिएशन कमेंसालिज्म है, जहां बार्नाकल का इज बेनिफिटिंग फ्रॉम इट्स प्रेजेंस, वेल इज न्यूट्रल. ठीक है. ओके, दे आर ओमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट एवरीवेयर. दैट मींस हैबिटेट के हिसाब से सब जगह पर है. पैरासिटिक आर्थ्रोपोड्स आर सैंग्विवोरस. Others feed on detritus food or flesh. Organ system bilaterally symmetrical, triploblastic, metamerically segmented coelomate animals. So metameric segmentation we always think of two phyla: annelids, arthropods. Annelids and arthropods. Okay. The body of arthropods is covered by chitinous exoskeleton. Right? चिटिन के डिस्कशन में मुझे घुसना नहीं है अभी मुझे. ठीक है. बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन. चूंकि कॉकरोच का डिस्कशन हो चुका है, बहुत एकदम इजी जाएगा इसका डिस्कशन अपना ये. इन सम आर्थ्रोपोड्स हेड एंड थोरैक्स फ्यूज टू फॉर्म सेफेलोथोरैक्स. सेफेल मतलब हेड होता है. सेफेल का मतलब हेड होता है. राइट, सेफेलोथोरैक्स, सो हेड एंड थोरैक्स. नर्वस सिस्टम में पढ़ा रहेगा ना, मीजेंसेफेलॉन, डायेंसेफेलॉन. सो वर्ड सेफेल का मतलब होता है हेड. दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस. राइट, ऑब्वियसली आर्थ्रोपोडा का मतलब ही होता है जॉइंटेड फीट, इजंट इट? आर्थ्रा इज जॉइंट एंड पोडा इज फीट. दैट्स व्हाई दे कॉल्ड आर्थ्रोपोडा. So can somebody explain what do you mean by jointed appendages? Can raise your hand to answer this question, please. Riddhi, bolo beta. They have joints in their appendix. Exactly right. Now remember cockroach, Riddhi. Cockroach का leg का structure याद है क्या नहीं? है क्या नहीं? Coxa, trochanter, femur, tarsus. They are joints, just jointed to each other. So it is jointed feet. Very good, Riddhi. Okay. आज पूरे तीनों लेक्चर में इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ रिद्धि ने दिया है. राइट, तो रिद्धि तुम्हारा थोड़ा सा आज के थोड़ा सा 25% माफ. ओके, 25%, ज्यादा नहीं. अभी भी 75% गुस्सा है मेरे को. ओके, ठीक है. दे possess legs for crawling, creeping, walking and wings for flying. Obviously cockroach, you know that wings are rarely used for flying.
Exoskeleton does not allow body growth. Arthropods shed off their exoskeleton periodically. This is called molting or ecdysis. Right? Cockroach में ecdysis कितनी बार होता है? 13 times. 13 times. Very good. 13 times. यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करो जी। नारायण सर बोलो सर, आपने हाथ रेस किया है। 13 बोलने के लिए हार्ड है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। ये एक्डाइसिस में एक एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ दो। एक्डाइसिस इज डन बाय अ हार्मोन कॉल्ड एज एक्डाइसोन, ECDYSONE, एक्डाइसोन। So can कौन you से बुक repeat का the spelling? एमसीक्यू है? पता नहीं, आ जाए कभी तो भी। एक्डाइसोन, So spelling repeat करो ना. ECDYSONE, एक्डाइसोन। तो डीसीटी है सारे टेस्ट? ये नारायण ने पूछा, राइट ना? नारायण, यू स्टार्ट राइटिंग ऑफलाइन नाउ ना? फिर आपको कैसे पता? तूने मेरे को भेजा था ना, सर आई वांट टू अटेंड हाँ, ऑफलाइन। मैंने बोला था प्लीज आस्क विशाल सर, है ना? बराबर ना बेटा? मेरे को सब याद रहता, कौन मैसेज क्या भेजता है मुझे सब याद रहता है बेटा। हाँ Yes. हाँ। तो मंडे को आ रहा है ना तू बोरेवली? ट्यूसडे। अबे सर पार्ला। पार्ला, ओके ठीक है बेटा, हम लोग तब मिलेंगे। और अभी तो अप्रैल 2 से तो मास्क भी नॉट कंपलसरी है, तो मैं क्लास में सबको बराबर देख भी पाऊंगा, राइट ना? तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिससे मुझको बदला लेने का बाकी है, और तू लिस्ट में एकदम ऊपर है बेटा। ओके चल ठीक है। सो एक्डाइसिस वाला पॉइंट ऑलरेडी किया हुआ है। अच्छा देखो, दूसरा एक चीज मुझे तुम्हारा अटेंशन ड्रॉ करना था। ये देखो यहाँ पे मैंने एक इमेज डाला है, राइट? किंगडम एनिमेलिया में फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोड्स में बहुत सारे सब फाइलम्स है। यू नो, फाइलम के बाद क्लास आता है, पढ़ा है ना हमने? 7 कैटेगरीज पढ़ा है कि नहीं? फाइलम के बाद क्लास आता है। ओके सो अब देखो, सब फाइलम क्रस्टेशिया, तो जितने प्रॉन्स वगैरह जो है ना, क्रैब्स, प्रॉन्स, ये सब क्रस्टेशिया में आते हैं। सब फाइलम यूनिरैमिया में क्लास इंसेक्टा आता है। तो ये जो आर्थ्रोपॉड्स आपको बना, आर्थ्रोपॉड्स में 2/3 ऑफ इंसेक्ट्स है, 2/3 ऑफ एनिमल्स यहाँ पे आए ना, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स है। इंसेक्ट वाला क्लास सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, राइट ना? तो अगेन यहाँ पर, अगेन ये सारे इंपॉर्टेंट है नहीं, ये जो क्लास वाज मेंशन्ड है, राइट? ये खाली थोड़ा सा इंप्रेस करने के लिए कि आर्थ्रोपोड कितना बड़ा है, यही डाला है और कुछ नहीं, राइट? टेंशन मत लेना। Respiratory organs. See the number of respiratory organs. 4 different types of respiratory organs. Highlights कितना बड़ा फाइलम है ये, राइट? टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, एक्वेटिक भी हो सकता है, बता ना, पैरासिटिक भी है, फ्री लिविंग भी है। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे हैबिटेट चेंज होगा, उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम भी थोड़ा सा चेंज होते जाएगा, राइट ना? सो यू कैन हैव गिल्स फॉर एक्वेटिक वंस, बुक गिल्स। नाउ ये टिपिकली आपको मिलता है किंग क्रैब में। किंग क्रैब इज अ लिविंग फॉसिल, राइट? लिम्यूलस बोलते हैं इसको, आगे एग्जांपल शायद दिया हुआ है, ये देखो, लिविंग फॉसिल, लिम्यूलस, किंग क्रैब। लिविंग फॉसिल मीन? लिविंग फॉसिल का मतलब है बहुत पुराना ऑर्गेनिज्म है, अभी तक एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है, इसलिए उसको लिविंग फॉसिल की तरह रेफर करते हैं हम लोग। ओके। ठीक है। आपको और एक एग्जांपल दे दूं लिविंग फॉसिल का। किंगडम प्लांटे में, आप एनसीईआरटी साथ में ना आपके, आप जाओ डायग्राम 3.4। अरे सर ये आप मत बोलो, अजीब लगता है। 3.4 में कैन यू सी ABC डायग्राम दिया हुआ है, साइकस स्पाइनस, और नीचे दिया हुआ है गिंको। हाँ, दैट गिंको इज गिंको बाइलोबा, इट्स अ लिविंग फॉसिल। तो कितना साल पुराना है? होगा यार, हजारों साल पुराना है, मैंने गिना नहीं है अभी तक। हाँ, शायद कैलेंडर डिस्कवर हो उसके पहले से रहेगा शायद से। 20,000 ईयर्स। ठीक है। सो बुक गिल्स हो गया, बुक लंग्स हो सकता है, ट्रकियल सिस्टम। देखो हमने कॉकरोच में ट्रकियल सिस्टम पढ़ा है, राइट? बाहर से स्पिरैकल्स है 10 पेयर्स,
2 pairs in thorax, 8 pairs in abdomen. Under it leads to a tube called as tracheal tube system. Is it not? Trachea will lead to tracheoles. उसके बाद में फिर वो finger like projection and all that. Circulatory system open type है. Digestive system well developed, consists of foregut, midgut and hindgut. पढ़ा है हम लोग ने सब कुछ, राइट ना? याद है ना सब कुछ कॉकरोच का डिस्क्रिप्शन, राइट ना? फोरगट मिडगट के जंक्शन पे हेपेटिक सीके है, मिडगट हाइंड के सेक्शन जंक्शन पे मैल्फिजियन टिब्यूल्स है. माउथ पार्ट्स आर हाईली इवॉल्व्ड एंड यूज्ड फॉर कटिंग, चूइंग एंड सकिंग. ना देखो ये फाइलम बहुत बड़ा है और फाइलम में अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स है. तो माउथ पार्ट जो है ना, इट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस, फॉर एग्जांपल हनी बी, राइट? हनी बी का माउथ पार्ट इज यूज फॉर डिराइविंग नेक्टर. इट इज, हाँ, तो उसको लॉन्ग प्रोबोसिस रहेगा. अभी मस्कीटो, जो मस्कीटो रहेगा, हाँ, इट हैज टू पियर्स, तो अगेन उसका, हाँ, तो उसका यूज अलग हो जाएगा, माउथ पार्ट उसका चेंज होगा उसका. जैसे कॉकरोच में हमने क्या बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप किया है क्या ना? तो इट इज बाइटिंग एंड, उसको खाना खाने के लिए चाहिए खाली. तो अलग अलग माउथ्स के अलग अलग फंक्शन होंगे, तो उसमें वो चेंजेस आते जाएंगे. ओके, ये डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में. दिस डायग्राम इज देयर इन एनसीईआरटी, राइट? उसमें से मेरा सबसे फेवरेट डायग्राम ये ए वाला है. देखो स्टार्टिंग में मैंने इसको ही रखा है, देखो स्टार्टिंग में एकदम फेवरेट है मेरा. बताता हूँ क्यों, राइट ना? इसको यहां से मैं स्क्रीनशॉट लूंगा और तुम्हारे क्वेश्चन में पेस्ट करूंगा. आइडेंटिफाई दिस ऑर्गेनिज्म. देखो ऑर्गेनिज्म तो लोकस्ट है, राइट? ए ऑप्शन. और उसमें बी ऑप्शन में डालूंगा ग्रास हॉपर. हाँ पता है. और सब लोग ग्रास हॉपर में एकदम मार्क करेंगे, राइट ना? पता है नहीं सब लोग ग्रास हॉपर से इतना प्यार क्यों है, और बेचारे लोकस्ट को कोई याद नहीं तो वो रखता है. डिफरेंस क्या है दोनों में? हाँ, नहीं, एनसीईआरटी लोकस्ट बोलता है तो लोकस्ट खत्म. अरे क्या है क्या? हाँ, ठीक है ना? दूसरा चीज, राइट ना? लुक एट द ऑप्शन सी, स्कॉर्पियन. If you just look at it properly, 1, 2, 3, 4 pairs of jointed feet. 1, 2, 3, 4 pairs of jointed feet. हाँ, अभी ये एनसीईआरटी से खोद के निकालते क्वेश्चन, राइट? ओके, हाँ, and they all put this in a book called as NCERT Nichod, right ना? हाँ, बराबर ना पटेल? सर याद है सर आपको? हाँ, बोलो, पूछो, क्या हो गया? हेलो, the nervous, yeah, please. Nervous system consists of nerve ring and paired ganglia connected to a double ventral nerve cord. Cockroach में we have studied the structure of a nerve ring and that of a nerve cord also. Sensory organs like antenna, right? Cockroach में antenna था, yes. Eyes can be compound as well as simple. Cockroach में we came across compound eyes, right? Made up of 2000 individual structures called ommatidia. Right? But लेकिन if there is a single structure functioning as the eye, वो simple eye हो जाएगा. Gustatoreceptors for taste. Statocyst or balance organs are present. Okay. Excretion takes place through malphigian tubules or green glands. Okay, so malphigian tubules or green glands. Reproduction mostly dioecious. Fertilization is usually internal, mostly oviparous, producing eggs that hatch outside the body except scorpions. Development may be direct or indirect. Again, the phyla is too big to very specify direct or indirect development. In some arthropods like honeybees is an arthropod. Okay, the offsprings are produced by parthenogenesis. Are all the offsprings produced by parthenogenesis or only the male offspring? Only male. Only the male, right? ना, हाँ, तो generalize मत करना इसको यहाँ पे please, because the male is haploid, that's why. Some economically important insects like apis, right? Apis, the common Indian bee is called Apis indica, obviously because it is found in India, so the species name is Apis indica. Generally used for beekeeping, right? Beekeeping say you can generate honey. Bombyx mori, silkworm जो insect है,
Silkworm is called Bombyx mori. Laxifer is called as a lac insect. Now ये lac insect में जो female lac होता है ना, female lac insect, उसके body से there is a secretion coming out called as the lac, and that lac is used for a lot of industrial purposes, also making decorative articles, artificial jewelry, and all that stuff. 85% of the lac of the world is produced in India. So India में lac is a very big industry. Edibly economically important में lobsters, prawns, crabs, right? My apologies to all the pure vegetarians here, but the non-vegetarians will relish all this. I know. Okay. Harmful vectors. Vectors are disease carriers, right? They are agents for carrying diseases like Anopheles. The female Anopheles is a carrier for Plasmodium, malaria, isn't it? The Aedes is a carrier for dengue, right? Similarly, Culex is a carrier for filariasis. Culex mosquito is a carrier for filaria. Locust has been described as a gregarious pest, right? Gregarious, those who move in large numbers. Locust is always a swarm, na? Single locust नहीं आएगा. Okay. Pest का मतलब होता है organism which causes economic damage to the crop. उसको बोलते हैं pest. Living fossil limulus है, मैंने बता दी already आप लोग को. ठीक है. So we finish with arthropoda का description. So 5 phyla we have covered today, guys. Right? We have covered Ctenophora, 2 worms, Platy and Aschelminthes, and we have covered Annelida and Arthropoda. So total we have covered 7 phyla. 7 phyla per DCT. Probably on Monday, Tuesday. Probably. Confirmation Sunday को मिलेगा. You have a test of Kingdom Plantae next week. Sir ने बोला है. अभी Kingdom Plantae का कौन सा चैप्टर है वो कल डिसाइड करके बता देंगे आपको संडे को. Which chapter is there along with Kingdom Plantae? Sir said He nothing said else. there is no chapter. with Kingdom. ऐसा किसने बोला? विशाल सर ने बोला. Yes, sir. ओ ओके, तो मैं विशाल से बात करूंगा. नहीं रखना तो है अपने को. ओके, can't break that mold. राइट. और क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? 16 चैप्टर का टेस्ट, 16 चैप्टर का टेस्ट तो ऑलरेडी दे चुके हो यार. सब रिवीजन तो हो गया है. तो एक बार गो थ्रू करना है और क्या है, क्या फर्क पड़ता है? है ना? प्लांटे के लिए हाँ हम मालूम है, डेडिकेशन मालूम है. मिल रहे हम लोग ट्यूसडे को, डेडिकेशन देखेंगे ना. ओके. इतना क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं कर रहा. ओके हाँ ठीक है.